हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। There are shortcoming of Indian electoral system. There is a most important topic here. Has been to the universal appreciation of the Indian electoral system. People have held the manner in which the elections has been to the conducted in India. But there are the weakness. It has been to seen that is a spite of the effort of election commission to ensure the free and fair election. There are a content of shortcoming to our electoral system. Some notable weaknesses are discussed below. The first weakness here is the money power. Their money power is the most important weakness for the India. The role of the uncounted money in the election has become a serious problem. The political parties collect funds from the companies and business house and then use the money for the influence by the voter to vote in their favor. The business contributions are mostly in case and are not be uncounted. Many other craft practice are also adopted to the during to the election, such as the briefings, raggings, and the voter intermediation, impersonation, and providing to the transport and the conveyances of the voter to and fro of the polling station. The reports of the liquids being to distribute in a poor area and frequently during to the election. The next here is a muscle power. The earlier the criminals used to support to the candidate by intermediate the voter at the gunpoint to the vote according to their direction. Now they themselves have to come openly if there is a contesting the election leading of criminalization of politics. As a result, the violence during to the election has also increased. And the next year, caste and religions. There are caste and religions that generally the candidate are given ticket by the political party on the considerations whether the candidate can be mustered the support of numerically larger caste and community and the post of enough resource. Even the electorate is vote on the caste and communals and the lines. Communals is a lollitas as their voter are used at the time of is a propaganda is a campaign. And the next year, the misuse of government machinery. There is the most important. All the political party do not have a equal opportunity in a respect access to the resource. The party's power is a way to the advantage of position than to the position party. There is a spirit to the elections and that party's power accomplished of misuse of government machinery. All these features lead to the violence, both a capturing or risings as bogle votings and the forceful removal of the ballot paper. The ballot box is a burning of the vehicles, etc., which result in the loss of public faith in election. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आया है, जो कि मैं पहले भी बता रहा था कि हमारे देश में कहते हैं बहुत रूल रेगुलेशन जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी भी है और सही प्रावधान भी की गई है। लेकिन कहते हैं कि हर जगह जो है हर बातें नहीं चलती है। वही प्रावधान यहाँ पर दिखाया गया अगले पॉइंट के रूप में कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया के दोष। देखिए, भारतीय इलेक्शन में जो होती है बहुत ही दोष देखने को मिलता है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया दुनिया भर में जो है प्रशंसा हुई है, जिस तरह भारत में चुनाव करवाए जाते हैं इसकी लोगों में सराहना भी की गई है। लेकिन इस प्रक्रिया की अपनी कुछ कमियां भी हैं। यह देखा गया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों के बावजूद हमारी चुनाव प्रक्रिया जो है कुछ त्रुटियां हैं और कुछ उल्लेखनीय त्रुटियों पर भी चर्चा की गई है। मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि चुनाव आयोग द्वारा ने बहुत सी जो है प्रावधान ऐसे बनाए हैं जिससे जो है अयोग्य घोषित भी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों का जो है गलत उपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो जो प्रावधान बनाए हैं उसके विपरीत आज के समय में हो रहा है और ये सब कहते हैं सब आँख के सामने होता है, लेकिन फिर भी उस पर जो है कंट्रोल करना संभव नहीं है। पहले तो यही बात आती है कि धन बल। देखिए, चुनाव आयोग ने धन जो है खर्च करने की एक लिमिटेशन दिया है, लेकिन यहाँ पर धन बल की बात की गई है। चुनाव में बेहिसाब जो है पैसे की भूमिका एक गंभीर समस्या बन गई है। कहते हैं चुनाव आयोग द्वारा एक निश्चित किया गया है कि आप इतने ही रकम जो है यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहते हैं चुनाव जीतने के लिए धड़ल्ले से जो है ये गंभीर पैसे उड़ाते रहते हैं, लुटाते रहते हैं। यानी पैसे जितने भी वो लोग बहा रहे होते हैं सब के सब जो है इलेक्शन जीतने के बाद वो कैसे ही भी निकाल लेते हैं। कहते हैं राजनीतिक दल
कंपनियां और व्यापारियों को पैसा एकत्र करते हैं, यानी कंपनियों को फायदा देते हैं। तभी तो आपको पता है कि भारत में जो चीज़ बैन है वो अभी धड़ल्ले से चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सरकार ने उससे पैसे लिए थे, तभी जाके वो कंपनियां आज भी बैन होने के पश्चात भी जो है उस वस्तु का जो है धड़ल्ले से जो है मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है सारे जो है राजनीतिक नेता के इर्द गिर्द ही घूम रहा होता है। यहाँ पर ना कोई बैन है ना कुछ है, सब के सब जो है किताबी बातें होती है, सच्चाई में ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो ये लोग जो होते हैं बड़े बड़े पैसे जो होते हैं इन व्यापारियों से लेते हैं, इन कंपनियों से लेते हैं। व्यापारियों जो है योगदान अधिकतम नकद और हिसाब किताब के बाहर होता है। चुनाव के दौरान अन्य कई भ्रष्ट तरीके जैसे रिश्वत देना, बेईमानी अथवा वोटरों को डराना धमकाना, जाली वोट डलवाना, मतदाताओं के मतदान केंद्र तक लाने वापस ले जाने के परिवहन अन्य साधन मुहैया कराया जाता है। ठीक है, और ये सारे अपनाए भी जाते हैं। चुनाव के दौरान गरीब इलाकों में शराब बांटने की तो सूचनाएं आम बात है। आपने देखा भी होगा और जानते भी होंगे कि जैसे रात होता है, रात में आपके घर में कंबल बांटने आ जाते हैं, स्वेटर बांटने आ जाते हैं, कपड़े बांटने आ जाते हैं। तो ये सारे धड़ल्ले से पैसा उपयोग करते हैं और उनको पता है कि एक बार मैं इलेक्शन जीत गया तो इसे 7 गुना तो मैं पहले पैसा जेब में रख लूँगा। और इवन ये होता भी है, और ये कोई दो राय नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये आपको भी पता है और सबको पता है, फिर भी कहते हैं ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। उसके पश्चात है बाहुबल। देखिए दूसरा जो सबसे बड़ी फैक्टर आता है बाहुबल। पहले अपराधी बंदूक के नोक पर मतदाताओं को डरा धमका कर उनसे अपनी इच्छा अनुसार वोट डलवा कर उम्मीदवारों का सहयोग दिए करते थे। अब वे स्वयं चुनाव लड़ने के द्वारा जो है खुलकर सामने आ गए हैं, जैसे राजनीतिक का जो अपराधीकरण हुआ है। परिणाम स्वरूप चुनावों के दौरान हिंसा की घटनाएं काफ़ी वृद्धि हुई है। आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने बात कहा कि कोई व्यक्ति किसी के लिए धर्म का उपयोग नहीं करेगा, ना जो है गलत भाषण का उपयोग करेगा। लेकिन ये जो होते हैं, जो बाहुबली होते हैं, वो सब कुछ अपनाते हैं। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के नाक के नीचे ही सब कुछ गतिविधियां हो रही होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन करे भी तो क्या करे, एक पर्चा पकड़ा देते हैं और वो भी अपना जो है पल्ला झाड़ लेते हैं। अब क्या करें, कहते हैं ये विडंबना हो गई है भारत की समस्याओं का। तो पहले तो कहते थे ये लोग जो है बड़े बड़े मंत्रियों के लिए प्रचार करते थे, आज जो है वो स्वयं ही इलेक्शन में कूद चुके हैं। तभी तो हमारा देश का जो है भलाई होना संभव नहीं हुआ है। आगे है अगला पॉइंट हमारा, जाति और धर्म। देखिए इलेक्शन कमीशन ने बस साफ कहा था कि जाति और धर्म के लिए कोई भी जो है स्थानों का प्रयोग न होगा, न जाति पे, न धर्म पे, न भाषा के आधार पर। लेकिन यहाँ पर जो इनकी कमियों में यही बात उजागर होती है कि प्राय राजनीतिक दल जो है उम्मीदवारों के इस विचार से जो है बाद टिकट देते हैं कि वह क्या संख्या की दृष्टि से बड़ी जाति और समुदाय के वोट और जो है सहयोग प्राप्त कर सकता है। देखिए कोई भी जो है आजकल पार्टी देखोगे ना, तो पार्टी जो है योग्यता के ऊपर नहीं देता है उसको टिकट, वो ये देखता है कि उसको कितने वहाँ पर किस धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ पर कैसे धर्म के लोग रह रहे हैं और कौन से धर्म के लोग रह रहे हैं, तब जाकर उनको वोटिंग का दिया जाता है टिकट। इससे क्या होता है, उनको वोट जो है जीतने की चांसेस 100% बन जाती है। तो यही बात वहाँ अपनाते भी हैं। मतदाता भी जाति और संप्रदाय के आधार पर जो है मतदान करते हैं। तो कहते हैं ना, जैसे आप बहोगे वैसे ही वो राजनीतिक नेता भी चलेंगे। अगर आपकी जो है गंगा इधर से बह रही तो वो भी तो इधर से बहाएंगे ना। जब आप भी जाति के नाम पे वोट देते हो, आप संप्रदाय के नाम पे वोट दोगे, तो इलेक्शन के जो बंदे होते हैं, जो पार्टी के बंदे होंगे, वो भी तो आपको जाति के रूप में ही आपको उम्मीदवार देंगे या संप्रदाय के ही उम्मीदवार देंगे। अगर आप जो होगा एक योग्य व्यक्ति को दोगे वोट, तो वो वोट आपके लिए जो होगा न्याय उचित होगा। आप कभी भी वोट डालने जाओ तो कभी भी जाति धर्म संप्रदाय देख के कभी वोट ना देखो। आपने देखना है कि कैंडिडेट की क्या योग्यता है, क्या उसके पास सोच विचार है, समझ है, क्या आपके लिए वो खड़ा हो सकता है, तब जाके वोट डालो। आप कभी भी भाषा जाति संप्रदाय के आधार पर या डर से कभी भी वोट न डालो। ये बहुत बड़ी प्रावधान करना है आप लोगों ने। प्रचार अभियान में लोगों की जो है सांप्रदायिक निष्ठा का प्रयोग भी किया जाता है। आपने देखा ही होगा, तो कई बार तो है ये लोग देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं, अपने धर्म को भी नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे को गलत उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, चुनाव जो होता है इंसानों को जो है सही एक प्रतिनिधित्व की जरूरत दिलाती है, न कि हमें धर्म के प्रति कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न करने के लिए बताती है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। देखिए, चुनाव आयोग ने साफ कहा था अपने जो लिस्ट में कि कोई भी सरकारी मशीनरी का उपयोग करना वैध माना जाएगा चुनाव में, लेकिन यहाँ पर देखिए वही है त्रुटियाँ जो मैं पहले भी चर्चा किया था कि सरकारी मशीनरी का ये लोग जो है खुल के दुरुपयोग करते हैं। सभी राजनीतिक दलों के पास संसाधनों तक पहुंचने का सबसे आसान अवसर नहीं होते हैं। सत्तारूढ़ दल जो है सदैव विपक्षी दलों से बेहतर स्थिति में होता है। आमतौर पर वह आरोप लगाता है कि सत्तासीन दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से नहीं हिचकिचाते हैं। इन सब कारणों से हिंसा, मत केंद्रों पर कब्जा करना, बेईमानी, जाली मतदान, मत पत्रों में पेटियों की बलात्कार छीन ले जाना, वाहनों को में आग लगा देना जैसी घटनाएं आपको आम देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप लोगों का चुनाव पर जो है विश्वास कम होता जा रहा है। तो विश्वास तो सही में कम होगा। कहते हैं ना, हम अगर अच्छे उम्मीदवार को चुन के भेज रहे हैं तो वो अगर आग लगा देते हैं, अगर ईवीएम मशीन को तोड़कर फेंक देते हैं, तो जो है सही प्रत्याशी कैसे प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही बड़ी जो है भारत के लिए चुनौतियां हैं। इन चीज़ों का अगला टॉपिक जो होगा, इन चुनौतियों को हम कैसे सामना करें उसके विषय में होगा। चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक आगे। Our next important topic here is electoral reform. What do you mean to electoral reform here? In order to restore the confidence of public in the democratic electoral system, the many electoral reform has been to recommended from time to time by the Tarundas Committee and the Goswami Committee, which are the particularly is appointed to study and report on the themes for electoral reform in year 1974 and 1990. There is respectfully, and out of this is accommodations is a sum has been to implemented. In fact, it is under to the chairmanship of the Chief Election Commission (T.N. Sena) that Election Commission is invited to the many more measures to ensure the free and fair election. Some of the reform which has been to be implemented so far are flowing here. The first is the voting age has been to the lowered from 21 years to the 18 years. And this has helped to increase the number of voters and response confidence in the youth of the country. And second here, another landmark of change has been to the increasing in amount of security deposit by the candidate to be prevent many is a nominee is a candidate from the contesting election with their its motives. And the photo identity card has been introduced a eradicate of the dual voting impersonation. There is the most important here. With the introductions of the electronic voting machine (EVM), the voting capturing is arriving, and the bogus votings may be not be possible. The bogus is the votings may be not possible here, and this use of EVM will be in there's a long run results in the reducing the cost of the holding election and also the incidence of tamperings during to the counting of votes. And if a discrepancy is found between the number of votes polled and the number of total votes counted, the returning officers is a way to report the matter is a forth with the elections commission. An election commission on such as a report may be either or declare the poll at the particular polling station as valid and given a date from a fresh poll or is a counter amend elections there are contingency. And there is a no doubt that India is a need to is a drastic pose reform, but still the fact remains that the Indian election has been largely free and fair and successfully conducted. It's give to country the proud distinction of began to the large democracy in the world. अब यहाँ पर देखा जाए, जैसे कि हमने चुनाव आयोग द्वारा दी गई निर्देशों का जो है लोगों द्वारा यानी प्रत्याशी द्वारा खंडित किया जाना यानी दोष था। अब जो है इसमें चुनाव में हमको सुधार करके चुनाव की जो है गरिमा को हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। कहते हैं ये दोष जो उत्पन्न किया गया है, जो इसकी दोष है वो बहुत ही गलत है, जो भारत में एक बहुत बड़ी जो है डेमोक्रेसी के लिए घात का भी विषय बन उठता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो चुनाव सुधार करके जो है कई मायने में इन चीज़ों को जो है बदलाव किया जा सकता है। कहते हैं लोकतंत्र चुनाव पर जो है प्रक्रिया में जनता के विश्वास को जो है पुनर्स्थापित करने के लिए क्रमश 1974 और 1990 में विशेष रूप से चुनाव सुधार की योजना का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए नियुक्ति भी की गई थी। इसमें तारकुंड समिति द्वारा अनेक जो है सुधारों की सिफारिश भी की गई थी। इन सिफारिशों में से कुछ को
लागू भी किया जा चुका है। देखिए दोस्तों, बात बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है कि चुनाव, देखिए जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा, जब तक जनता को हम ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति ही वास्तविकता में सिलेक्ट हो रहा है, ना कि जो धन के लिए लालच दे के, पानी के लालच दे के, बिजली के लालच दे के ही जो बंदा आगे चुना गया है। क्योंकि जनता में विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। अगर आज देखा जाए तो अमीर वर्ग के लोग जो होते हैं वो इलेक्शन में कभी भी पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते हैं। आज देखा जाए तो गरीब लोग ही जो है लालच में आके जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप इसके निरीक्षण भी करोगे या अगर आप जांच पड़ताल भी करोगे तो ये आप पाओगे कि अमीर लोगों में इतना इंटरेस्ट आज के समय में नहीं रह गया है इलेक्शन के लिए। जैसे अमेरिका में भी इलेक्शन के लिए जो लोगों का जो है बहुत ही जो है विचारधारा गिर चुका है, क्योंकि उनका मानना है कि दो पार्टी वहाँ पर भी होती है तो उन्हीं में से किसी एक पार्टी की जो है मेजोरिटी बन जाती है। तो भारत में भी यही बात सोचा गया है कि भाई जिस पार्टी के पास पैसे हैं, धन दौलत है, वही पार्टी जो है जीतेगी, इसलिए बड़े व्यक्ति जो है कभी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब कहते हैं, और जो गरीब लोग हैं इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि सरकार या तो उनको वोटिंग के रिगार्डिंग जो होता है घर आवास देते हैं या बहुत सी सुविधाएं जो होती है वोटिंग करने पर ही उनको प्राप्त होती है, इसलिए गरीब लोग जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है। लेकिन भारत ऐसे नहीं बन सकता है आगे, और नहीं ये आगे चलने के लिए जो सशक्त बन सकता है। इसके लिए अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबका जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। और इसके लिए जो है चुनाव में सुधार करना और जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा के निकालना, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसा ही हो जिसमें कोई तरह का जो है भेदभाव ना हो और इलेक्शन जो है फ्री और स्वतंत्र हो और इसमें किसी तरह के जो है गलत प्रावधान जो है सम्मिलित ना हो। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था, जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, उसको समाप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तभी जो है अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति तक भी इसमें जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और देश के जो है सही जो है डेमोक्रेसी बनाने के लिए अग्रसर होंगे। इसीलिए कहते हैं बहुत से सिफारिश हुआ और बहुत से रूल रेगुलेशन भी इस पे लागू किया गया है। वास्तव में उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टी.आर. शोसन की अध्यक्षता में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई नए उपायों भी अपनाया गया। कहते हैं अब तक लागू किए गए कुछ सुधार निम्नलिखित थे जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला सुधार तो यही था कि मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इससे वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई तथा देश में युवाओं में विश्वास प्रकट किया, क्योंकि हम कहते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है। कहते हैं युवा ने अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए सदैव ही कहते हैं अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। चुनावों की अमृता से न लेने वाले कई उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुरक्षा राशि भी बढ़ा देना एक अन्य बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो कहते हैं ये बहुत ही बड़ी बात और इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पर जाली मतदान और जो है बोगस मतदान के उन्मूलन के लिए फोटो पहचान पत्र भी शुरू किए गए हैं। फोटो जो है पहचान पत्र के रूप में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही कि पहले के समय में बोगस वोट अधिक दिया करते थे, कोई भी किसी के नाम से वोट दे देते थे, तो इसलिए जो फोटो लगाना भी जो है सही भी मान्यता में सही भी रहा है। जाली मतदान करना जो है कहते हैं ये प्रावधान बन गई थी, जिसकी वजह से जो बाहुबली व्यक्ति होता था या पैसे वाला होता था या कहते हैं गलत रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति होता था, वो चुनाव जो होता था बहुत आसानी से जीत जाता था। इवन कि अभी के समय भी ऐसा देखने को कई क्षेत्र में आपको मिला होगा, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं अगर देखा जाए तो और भी सुधार के रूप में देखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू होने से मतदान केंद्र पर जो है कब्जा करने, हेराफेरी और जाली मतदान संभव नहीं हो सकेगा। आपने देखा ही होगा कई फिल्मों में जो होता है वहाँ पर हेरा फेरी भी होती है, बॉक्सों की कब्जा भी कर लेते हैं और जाली मतदान भी करने लग जाते हैं। लेकिन वोटिंग मशीन से ये होता है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है संरक्षित कर ली जाती है। ठीक है, कहते हैं ईवीएम के प्रयोग से कुछ समय बाद चुनाव करवाने के खर्च को कम करने तथा गिनती के समय बेईमानी घटना भी कम हो गई। तो ये बहुत बड़ी बात इंपॉर्टेंट थी कि ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करने से जहाँ जो है समय का जो है बचत हो गई, बहुत से व्यक्ति चुनाव देने के लिए भी बहुत जल्दी फास्ट भी हो गया और कहते बेईमानी की घटनाएं भी कम होने लग गई। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपने टीवीओं में देखा ही होगा कि हर एक पार्टी जो होता है दूसरे पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं कि इन्होंने वोटिंग जो है ईवीएम मशीन में छेड़खानी किया है, ईवीएम मशीन को अपने फेवर में किया है। इवन कि आपने देखा भी होगा कि कुछ साल पहले जो है ईवीएम्स के टेस्ट भी करवाए गए थे, ठीक है, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आई सारे फॉल्स आई कि जो भी पार्टी गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारे फर्जी हैं। कहते हैं जहाँ पर वो लोग जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं कि सब मशीन सही था और
जहाँ पर वो लोग नहीं जीतते हैं वो कहते हैं कि मशीन में कुछ गड़बड़ी थी, मशीन एक पार्टी के लिए काम कर रही थी। तो ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का इनका जो है एक फार्मूला बन गया है। उनको पता है कि ऐसे करके ही वो अपने जो है पत्ता झाड़ सकते हैं। तो ये बड़ी बात घटनाएं हैं, लेकिन फिर भी जो है इलेक्शन कमीशन की बुद्धिमत्ता के कारण ही आज जो है बहुत कुछ सुधार में यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ डाले गए मतों की संख्या तथा गिनने गए मतों की संख्या में अंतर मिलने पर रिटर्निंग अधिकारी सीधे चुनाव आयोग को सूचना दे सकता है। ऐसी रिपोर्ट मिलने पर चुनाव आयोग किसी विशेष जो है मतदान केंद्र पर हुए चुनाव को अवैध घोषित भी कर सकता है। ये भी प्रावधान किया गया है और नए चुनाव तिथि की निश्चित कर सकता है अथवा उसे पूरे चुनाव क्षेत्र का जो है चुनाव रद्द कर सकता है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रावधान बनाया गया है कि लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हम जो है डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर जो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र की सदैव ही विजय होती है। चाहे जो मर्जी जितने भी मर्जी लोग कर ले, कहते हैं ना आखिर में जो जीत होती है हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। तो यही बात चुनाव आयोग भी सिद्ध करने की यहाँ पर कोशिश किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो था खत्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो होगा पार्टियों के विषय में होगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, तो उसको देखना आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये तब देख पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दोस्तों यहाँ पर दो बातें मैं हमेशा रखना चाहता हूँ और रखता भी हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक शेयर करना, जिससे वो एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर ले, अपनी समझ से जो है एग्जाम लिख सके। क्योंकि एक बार अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो ये कई मानने में आपको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि जहां पर आपको आवाज़ों के थ्रू समझाया जाता है वही जो है अक्षर का डिस्प्ले भी होता है, जहां से आप अपने नोट डाउन भी कर सकते हो। तीसरी बात ये भी रहती है कि आपको जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, यानी आप इंग्लिश के वर्ड से जो है हिंदी को भी समझ सकते हो। तो इतना कुछ इसलिए किया जा रहा है और इतना अधिक मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो। तो आपका भी फर्ज है जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में अपना जो है विशेष योगदान देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको सब्सक्राइब करके रखना भी, सेव करना भी आपके लिए फ़ायदे में रहेगा। क्योंकि बाद में अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को सर्च करोगे तो वो शायद जो है गूगल कर से करो चाहे आप यूट्यूब पे करो तो वो त्रिपुरा लिखा हुआ आएगा, तो आपको शायद त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर वही सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल, तो इसका जो है सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगी मिलती रहेगी समय समय पर। और प्लस अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप इसके चैनल पे जाके इसके वीडियो के ऑप्शन में देख सकते हो। यहाँ पर सभी वीडियो जो है बहुत आसान तरीके से उपलब्ध रहेगा। जो भी वीडियो आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उस वीडियो को देख के जो है अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अग्रसर भी हो सकते हो।